Yeah, hello all. Welcome to Trade for Well Trading Academy. Today is one of the wonderful day. We can discuss about the Nifty and Bank Nifty options, okay, how to take a decisions about the options and which parameters affect for the options and how to take the entry, exit and somewhat stop loss criteria and all. I will try to cover maximum part in practical approach, and after that we can discuss about the our question and answer queries also. And right now just hit my target 130, and I'm expecting 170 members. My next target is 170. That is a GAN thing कि right nowadays I'm मेरे जो भी कुछ टारगेट्स होते हैं रिलेटेड अबाउट द गैन नंबर थ्योरी होते हैं एंड लेस अबाउट द चार्ट एनालिसिस एंड ऑल. Okay, we can start from the Nifty. Basically, how to analyze for the Monday, let us say for the next day. Many of the traders just in the intraday they start the trading. Wow, abhi ka chart kya dekho, and then they start the like directly trading. No, that is not the right way. First, we have to decide the price action in the previous day only. Suppose Monday is a trading day, so I can analyze my stock analysis using price action on Saturday or Sunday only. That is the first part is a price action. That is called as PA. That is the heart of the trading. So that covers the 30 to 40% weightage. Let us say we can discuss about the Nifty. Then one can start with the daily time frame. One can do the daily time frame. So I will do the auto. So this is the daily time frame. So first of all, analyze key in what is the daily time frame actions. In the daily time frame actions, it is uh, प्रीवियस 2 डेज का हाई ब्रेक किया हुआ है और यहाँ पे जो भी कुछ साइडवेज एक्शन टू मच वोलाटाइल मार्केट नाउ डेज फ्रैंकली स्पीकिंग कि नथिंग विल बी वर्क ऑन ओआई डेटा प्राइस एक्शन की जो भी लगता है कि यहाँ पे भाई ये बेरिश था और नेक्स्ट डे डायरेक्टली गैप अप ओपन हुआ yesterday also next day bullish tha and next day gap down so like that way. So right now suppose for the Monday फिफ्थ और सिक्स ऑफ अप्रैल के अगर मुझे एनालिसिस करना है so it's making a higher high. So पर्टिकुलर कैंडल वाइज ये टू कैंडल्स को इसने ब्रेक किया हुआ है यहाँ पे सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ रैली इफ इफ एंड ओनली इफ high of this doji, the doji candle ka high is 14,878, so I'm expecting a rally above 14,880, so I will mark one of the line over there. So yesterday also just touched that, just check the high 14,883, but not giving the closing above 14,880. But I am expecting a rally till here, that is 15,030. That is my again one of the GAN number, and next rally will be till here. If a bull rally will start then. So this is the daily chart analysis. Okay. So just a daily analysis. I will just check the RSI also. Yeah, it's above 50. Yeah. So it's a bullish trend for the RSI also. Then I will visit to 1 hour chart. First daily, then 1 hour chart. Auto. Yeah. If I am expecting in the hourly chart, then these are my just levels. I am just randomly marking the levels. Then here I am getting one of the pattern. Like here, I think it's giving a head and shoulder pattern in hourly chart. I hope so, if I am not wrong. This is a head and shoulder pattern. Then first target will be this head, na only. ये जो हेड राइट शोल्डर था या लेफ्ट शोल्डर था, दैट इज माय फर्स्ट टारगेट. तो दिस इज T1. तो ये T1 यहाँ तक आ जाएगा एंड T2 विल बी दिस एंटायर हेड का हाइट. दिस इज T2. सो ये T2 यहाँ तक हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली. तो दैट इज माय फाइनल टारगेट. अगर ये हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट देगा तो दैट इज अ प्राइस एक्शन स्टडी. So I will watch till price action daily, hourly, 15 minutes. That is a first day job. That is my first day job. So this is the Nifty ka first day job ki just done. That is a 30% done. So I'm expecting a rally in the above. So I will. So my concept will be the buy on dips, not the shorting. I will not expecting a shorting opportunity. I will buy on dips. तो यहाँ पे till यहाँ तक अगर मुझे buying opportunity अगर कहाँ पे मिलता है, so I will take the buying opportunity or I will aggressively buy above this level because this is a head and shoulder breakout level, no? Like that way में. So removed. I'm just removing the drawing. So this is a head and shoulder pattern breakout. So I will just make a one line here and I will just visit to 5 minutes or 15 minutes for the next day.
So this is my labels. Just I'm maintaining that type of labels. This is one of the example. Not every day I'm getting the head and shoulder pattern. There are various patterns. Swing high, swing low होते हैं. That is my one of the favorite pattern that I taught in pro batch and option pro batch students, especially or advanced batch students. So yeah, 5 minutes. In 5 minutes also I'm getting cup and handle pattern. So if that breaks 14,890, then approximately 15,000 easily Monday को आ जाएगा. ठीक है? So that is my first action done. That is price action is over. Then what will be the next action? If apart from the price action, my second goal is particular setup. So you can use n number of setups market में available है. We can discuss about something setups here also. So related with that, I'm using one of the aggressive setup from the my software number 2. This is the software number 2, that is nothing a software exactly. These are the parameters I am using. That is in that parameters I am using the, let us say we can discuss the setting and style. There are various parameters. There are two moving average also using. I am using, that is special moving average 20-day and 50-day moving average का crossover. There is a parabolic SAR also using. I am using the pivots also. मैंने hide करके रखा है. There are resistance, Fibonacci support and resistance also. I will use that also. Don't worry about that. And basically, I'm aggressively using PDH and PDL in that. That is, what do you mean by PDH and PDL? That is a previous day high and previous day low. This is depend upon the previous day. अभी next day का यहाँ पे draw नहीं हुआ है. So we can draw manually if you want. और otherwise मेरा software directly draw करेगा. तो यहाँ पे ये previous day I will draw the ray, so that will help you out. So this is previous day high and this is previous day low. Yeah, like that I will mark. So next day, if you don't want the software, then we can do the manually also. This is the previous day high and this is the previous day low. If I will get the chance near to the previous day low, that is 14,700 is a major support over there. Na? You can check it over here. देखो, maximum times that touch 14,700 and blast. On Friday also I mentioned same level. Upper side 14,830 and lower side 14,690, 670. And both the levels easily achieve. Upper side also and lower side also. Okay? So if Monday if market is open above this PDS, then that will be the bullish signal. That is one of my setup. If the price is breaking above the PDS, then that will give the huge rally. If the price breaking the PDL, that is the previous day low, then that will give the huge downside rally. There is no trading zone between PDH and PDL. If you follow only the PDH and PDL setup, then I will just explain the Friday ka. No more questions. Don't type anything. Okay. Oh, please Hindi language. Oh, actually आधे जन बोलते कि इंग्लिश बोलो, आधे जन बोलते हिंदी बोलो. या आई विल एक्सप्लेन इन बोथ द लैंग्वेज, डोंट वरी अबाउट इट. तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, पीडीएच एंड पीडीएल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. पीडीएच और पीडीएल, पीडीएच और पीडीएल होता है क्या, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो. यहाँ पे ये प्लॉट नहीं हुआ है ना, आप चाहो तो मैन्युअली भी प्लॉट कर सकते हो, लाइक दिस वे में. आई विल ड्रॉ दिस हॉरिजॉन्टल लाइन ओवर, ये प्रीवियस डे हाई था ना, आई विल ड्रॉ द रे इफ यू वांट, horizontal ray यहाँ पे. ओके, एंड आई विल ड्रॉ वन ऑफ द प्रीवियस डे लो के यहाँ पे. ठीक है, तो अभी मैंने क्या बोला, अभी मैं दोनों में एक्सप्लेन करूँ, पहले इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँ, बाद में हिंदी में, फिर आप कर लो जम जैसे भी है. तो प्रीवियस डे हाई अगर ब्रेक होता है, प्रीवियस डे हाई अगर ब्रेक होता है तो बड़ा रैली एक्सपेक्टेड होता है, और प्रीवियस डे लो ब्रेक हुआ तो बड़ा रैली एक्सपेक्टेड होता है. बस मैंने उतना ही पता. तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फ्राइडे का एक्सप्लेन कर रहा हूँ. फ्राइडे व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली मैं बताता हूँ क्या किया था मैंने. यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस जोन बताया था, वो रेजिस्टेंस जोन इज नथिंग बट प्रीवियस डे का ही हाई था, वो एग्जैक्टली यहाँ पे मैच हुआ. 14,800 टू 14,830 का मैंने रेंज दिया था. मार्केट डायरेक्टली गैप अप बट नॉट सस्टेन एट ऑल. सो दिस इज योर सेटअप कि भाई पीडीएच के यहाँ पे जाके दैट इज गिविंग द हर्डल कि मार्केट इज ओपन एट द गैप अप, यहां से डायरेक्टली गैप अप 150 पॉइंट्स एंड नॉट सस्टेनिंग अबाउ द पीडीएच. ये पीडीएच तो ऑलरेडी ड्रॉ करके हुआ रहता है, नहीं हुआ तो आप मैन्युअली ड्रॉ कर लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल.
एंड गिविंग द लो, ये दिस इज अगेन अ गैप थ्योरी, अगर आपको नहीं पता तो 5 डे, इफ अ मार्केट इज गैप अप एंड 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स का अगर लो ब्रेक होता है विथ डिफरेंट कंडीशंस आल्सो, दैट इज नॉट द एक्चुअल कंडीशन, तो मार्केट विल बी ड्रास्टिकली फॉल, मतलब पहले 5 मिनट का अगर लो जाता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो वहां पे. सो वन कैन टेक द confirmation using the software signal, one can take the confirmation in the lower time frame. लोअर टाइम फ्रेम में मतलब 1 मिनट में भी आप कंफर्मेशन ले सकते हो अगर आपको शॉर्ट करना है तो. बट एक अप था तो शॉर्ट का लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे दिया कंफर्मेशन, दैट इज 10:28 को, मतलब 10:30 को आप शॉर्ट कर सकते थे 14,780 क्या पे. अब अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो और इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपको फिर सॉफ्टवेयर का अगर कंफर्मेशन चाहिए, दीज आर द माई सॉफ्टवेयर ना. दिस इज सॉफ्टवेयर नंबर 1 के यहाँ पे 2 सिग्नल लाइन होता है. फर्स्ट सिग्नल लाइन ने तो यहाँ पे ही मुझे सिग्नल दे दिया था कि भाई यहाँ से ही शॉर्ट कर दो, ये देखो ये यहाँ पे ही शॉर्ट का सिग्नल आ गया था, ये रेड हो गए थे लाइन, ठीक है. तो वन कैन टेक द कंफर्मेशन फ्रॉम दैट ओनली, या अदरवाइज आपको अगर शॉर्ट के लिए वेट करना है तो आप शॉर्ट के लिए भी वेट कर सकते हो फर्स्ट में. सो दैट इज अ, तो आपको शॉर्ट करना है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ किया, और फिर मैं अभी 5 मिनट या 3 मिनट्स में जा रहा हूँ. इंट्राडे अगर करना है, मार्केट इज नाउ डे टू मच वोलेटाइल, सो वन कैन शॉर्ट हियर, तो आपका शॉर्ट एग्जैक्टली यहाँ पे होता था. दैट इज ऑल्सो लो ना, ये कैंडल का लो जा रहा है तो भी एक अच्छा था, 14,760 के यहाँ से 14,700, मतलब ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट्स आपको इजीली मिलते थे. दैट इज अ वन वे. बहुत जन बोलते हैं अरे तू पोस्टमार्टम क्या कर रहा है, मार्केट खत्म हो गया उसके बाद बताना, बहुत सिंपल होता है. बट लोगों को ये नहीं समझ में आता कि फिर यही टेक्निक आपको लाइव मार्केट में अप्लाई करनी है ना. यू कैन अप्लाई दिस टेक्निक्स ओनली इन द लाइव मार्केट. हाँ भाई चलो मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, मेरा सॉफ्टवेयर नंबर 2 का पीडीएच एंड पीडीएल ब्रेक नहीं हुआ है, फर्स्ट 5 मिनट्स का ये जो लो था, ये जो लो था फर्स्ट 5 मिनट्स का या 15 मिनट्स का, यू कैन सेफ ट्रेडर हो तो ये अगर लो ब्रेक होता है यहाँ पे, वन कैन शॉर्ट हियर, योर स्टॉप लॉस इज टू लो ना पीडीएच क्या पे, और आपका टारगेट रहेगा पीडीएल तक, वो जनरली पीडीएल तक आता है. So that is my strategy, that is my setup. So one can you do that. So along with that, this is a software का signal जो मुझे short का दिया 1 मिनट में. If you are using 3 minutes, then you can use the 1 मिनट का software का confirmation. Along with that, मैं always बताता हूँ clients को कि you can take the decision along with OI data. That is again one of the important key. If you don't know the OI data ना, तो फिर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं कर सकते, बिकॉज ओआई डेटा इज अगेन हार्ट ऑफ ट्रेडिंग. मतलब आपको अगर ओआई डेटा का कंसेप्ट ही नहीं पता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो उसके लिए आप पहले ट्रेनिंग ज्वाइन कर लो या यूट्यूब से देख लो जो भी कुछ है वो. अभी ये जो डेटा था, आज तो मार्केट क्लोज है, ठीक है, ये एंड ऑफ द डेटा था, मार्केट उस दिन थ्रू आउट द डे बुलिश था, थ्रू आउट द डे, ठीक है. बट ये उस दिन का नहीं है, ये तो जस्ट फेक डेटा है क्योंकि मार्केट क्लोज है तो पहले का ही उसने क्लोज किया. तो यहाँ पे मुझे ट्रेंड एनालिसिस देखना है. व्हाट इज दिस डेटा फाइल, इसका भी वन, आई विल टेक वन ऑफ द कंडक्ट, आई विल कंडक्ट वन ऑफ द सेशन फॉर दिस एंटायर शीट, बिकॉज मेनी ऑफ द क्लाइंट्स मुझे बोल रहे हैं सर ये बताओ कभी होगा. जस्ट आई थिंक एक 1 वीक के बाद इसका लॉन्चिंग मैं कर रहा हूँ कि इसका आपको एक सेशन मिलेगा, एंड आफ्टर दैट, बट ऑब्वियस दिस इज ऑल्सो पेड, फ्री में नहीं होगा, ठीक है. बहुत जन बोलते हैं कि सर फ्री में दे दो, इसमें क्या है, ये तो एनएससी से मिलता है, तो मिलता है तो आप एनएससी से ले लो ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एट ऑल, अगर आपको एनएससी से फ्री में मिलता है यू कैन यूज द एनएससी से फ्री में ऑल्सो. बट आई यूज वेरियस टेक्निक्स, मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे टाइप की टेक्निक्स बेचते भी है. मेरा थोड़ा सा हटके है, मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि क्या हटके है इसमें, बट ठीक, बट स्टिल यू कैन फॉलो द ट्रेंड कि एट दैट टाइम ट्रेंड क्या था. अगर आपने यहाँ पे डिसीजन ले लिया है कि मुझे शॉर्ट करना है, तो मेरा प्राइस एक्शन शॉर्ट में होना चाहिए, जो था कि यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बोल रहा था, पीडीएच क्रॉस नहीं कर रहा है, दैट इज फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, मेरा सॉफ्टवेयर इज गिविंग द सेल सिग्नल, दैट इज द सॉफ्टवेयर नंबर 1 गिविंग द सेल सिग्नल इन द लोअर टाइम फ्रेम. इफ यू आर यूजिंग द 3 minutes and 5 minutes, then use the lower time frame software signal 1 minute or 3 minutes, that the key. At the same time, आपका ओआ डेटा एनालिसिस ऑल्सो इन द शॉर्ट मोड, यहाँ पे बेरिश सिग्नल होना चाहिए, अगर बेरिश नहीं है अप्लाई मत करो, ठीक है. सो दैट्स द की. सो योर की विल बी, मैं आपको बता दूं एक चार्ट, फर्स्ट विल बी योर पीए, दैट इज अ फर्स्ट की. सेकंड विल बी योर प्राइस एक्शन हुआ, दैट देन सेकंड विल बी द सेटअप. यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ सेटअप, जैसे अभी मैंने पीडीएच का सेटअप बताया, वैसे एन नंबर ऑफ सेटअप्स होते हैं. देन वन कैन यूज ओआई डेटा,
And if you have any software or any indicator, then one can use the software signal. ये ऐसा कॉम्बिनेशन अगर आप यूज करोगे तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द चांसेस इज मोर देन 80%. दैट इज ऑल्सो गुड हिट रेशियो ना. मतलब 10 में से 8 ट्रेड आपके हिट ही जाएंगे इन वोलाटाइल मार्केट ऑल्सो, अगर आप ये पूरा फॉलो करते हो तो. मेजोरिटी लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर फॉलो करते हैं, बट व्हाट अबाउट ओआई डेटा एंड व्हाट अबाउट योर सेटअप. आपका सेटअप नहीं है, ओआई डेटा नहीं है, तो सॉफ्टवेयर कुछ काम का नहीं है. यू शुड बी फोकस अबाउट दैट ऑल्सो. ठीक है. हम्म. तो आई होप कि जो लोग मुझे कंप्लेन कर रहे थे हिंदी में उनको सेटअप समझ में आ गया. ठीक है. फर्स्ट सेटअप कि फ्राइडे के दिन क्या था. सेकंड क्या हुआ फिर फ्राइडे के दिन ही, अगेन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे वो सपोर्ट के यहाँ से ही घुमा. 10,700 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट दैट टाइम. 14,700. सो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके मार्क होने चाहिए ना ऑलरेडी. वो कैसे मार्क करना है, देखो वो कैसे पता चला मुझे. आप अगर अवरली चार्ट अगर देखोगे, ऑटो कर लेता हूँ सॉफ्टवेयर को, मैं ये कर लेता हूँ. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ना, ये सपोर्ट जोन था. यहाँ पे आपको सपोर्ट जोन मार्क करके हुए दिख रहा है. यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल अगर ड्रॉ कर लूँ तो दिस इज माई सपोर्ट जोन. बिकॉज मेजोरिटी टाइम्स प्राइस वहां पे आके हिट होके चला गया ना. और मंडे के दिन भी वहां पे ही आया, जस्ट प्राइस वहां पे टच हुआ और फिर चला गया. तो आई नो कि ये दिस इज माय सपोर्ट जोन रिलेटेड विद द अवरली कैंडल. फिर आई विल शिफ्ट टू 3 मिनट चार्ट. अगर आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने नहीं आते, सो आई हैव द स्पेशल सॉफ्टवेयर, दैट इज सॉफ्टवेयर नंबर 3. उसका सपोर्ट जोन भी वही आता है. देखो जो मैंने मैन्युअली ड्रॉ किया था अवरली का, और वो सेम आता है. दैट इज नॉट अ बिग डील एट ऑल. तो ये सपोर्ट जोन था. तो यहाँ पे आई विल नॉट शॉर्ट. हियर आई विल नॉट शॉर्ट बिकॉज आई नो कि 14,700 इज माई सपोर्ट जोन. तो यहाँ पे अगर मैंने शॉर्ट किया हुआ है, देन वन कैन cover their position at the near to the support zone. That is my software number 3. Okay, means software number 2 give the PDH and PDL concept along with that target also. I will discuss about the target also, कि how to decide the target R1 R2 R3 or S1 S2 S3 like that way में. So here यहाँ पे शॉर्ट करना ही नहीं था, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना था. तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, आई विल वेट फॉर द कंफर्मेशन. विच टाइप ऑफ कंफर्मेशन? फर्स्ट प्राइस एक्शन वाइज क्या सपोर्ट था. ये वाह 14,700 का सपोर्ट था जो ऑलरेडी मैंने मॉर्निंग में मेंशन किया था. वैसे आप भी फाइंड आउट कर सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन. सेकंड इज आफ्टर द सपोर्ट जोन दैट सिग्नल शुड बी बुलिश. वो सिग्नल कौन सा? ओआई डेटा. दिस ओआई डेटा शुड बी बुलिश. ये बुलिश होना चाहिए था, वो हो गया था वहां पे. यहाँ पे सिग्नल ने बुलिश बता दिया था मुझे यहाँ पे इन दिस सिग्नल. तो यहाँ से मुझे लॉन्ग करना था 14,750 के यहाँ से, जो ऑलमोस्ट 14,850 के यहाँ पे था. ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का रैली ऑन एक्सपायरी डे. एक्सपायरी डे के टाइम ये 100 पॉइंट्स का रैली मतलब बिग डील होता है. मतलब आई होप कुछ 14-15 रुपीज का कॉल ऑप्शन 14,870 रुपीज चला गया था ऑन दैट डे. अलॉन्ग विद दैट यू कैन यूज द सॉफ्टवेयर नंबर 1 ऑल्सो, कि सॉफ्टवेयर नंबर 1 ने देखो लॉन्ग यहाँ पे दिया 3 मिनट्स में. ईयर ओनली मेरा ओआई डेटा यहाँ पे आ गया था क्योंकि ये साइडवेज था. आफ्टर दैट ये ब्रेकआउट के बाद ओआई डेटा ऑल्सो गिविंग द बाय सिग्नल, देन आई विल बाय. देन माय टारगेट विल बी दिस रेजिस्टेंस जोन ना. और वहां तक एग्जैक्टली गया. So one can use the software plus price action का combination along with the OI data, along with this OI data. So that is the Friday का trade कि how to decide. Then after that, sir ये तो आपने बता दिया. Then how to decide to which type of strike price one can choose. So I will give the example कि you always select ATM. So what is the meaning of ATM, ITM? I will post one of the video for that. Just try to understand. ATM means at the money. So one can select the at the money का calls. जो भी कुछ price चल रहा है, let us say price here 14,750. Then one can select 14,700 also, 14,750 also या 14,800 also. All these three price plus minus के आगे पीछे के all are called as ATM only. That is at the money. Then one can select the at the money. Always select the at the money because time decay factor not affect that much as compared to the out of the money call. Out of the money call on the expiry day बहुत बार ऐसे होते हैं कि क्लाइंट्स यहाँ पे 14,850 का कॉल ले लेते हैं. मार्केट वहां तक जाता है बट उनका ऑप्शन ही नहीं उतना इंक्रीज होता. देन दे
क्वेश्चन मी सर मार्केट तो वहां तक गया, अरे भाई वहां पे टाइम डीके भी होता है ना, तो ऑलवेज सिलेक्ट एटीएम rather than selecting the OTM or ITM. ATM will be best. ITM also better. After the ATM, the second preference will be the ITM, and the third preference will be the OTM. That is your the selection criteria from the NSE chart. कौन सा chart select करना है? Okay. After that, once you are taking the entry, these are the postmortem ना. अभी कल तो चार्ट नहीं है, तो मुझे पहले के दिन ही बताना है कि आप कैसे एंट्री ले सकते हो. Once your long position एक्टिव हियर, अगर पोजीशन अगर यहाँ पे एक्टिव हुआ है आपका सॉफ्टवेयर के हिसाब से, बेस के यहाँ से, तो डायरेक्टली एंट्री मत लो. एट दैट टाइम आपका ओआई डेटा शीट भी बुलिश होना चाहिए. तो आपका 50-70% काम हो गया. यस, मेरा 70% काम हो गया कि ओआई डेटा ऑल्सो बुलिश, माई सॉफ्टवेयर सिग्नल ऑल्सो गिविंग द बुलिश, प्राइस एक्शन इज ऑल्सो सेइंग द buy signal according to the support zone. Then one can take a long position near to 14,800 का कॉल. जो भी कुछ होगा यहाँ पे निफ्टी का 14,800 का कॉल, जो भी कुछ आपको लेना है, लेटर से मैंने 8 का लिया, आप उस एक्सपायरी का भी ले सकते हो. यहाँ पे उस दिन में यहाँ पे अगर कोई भी प्राइस आप देख रहे हो 1254 1 o'clock का जो भी कुछ पोजिशंस था 1 o'clock का, ये यहाँ पे वन कैन टेक अ लॉन्ग पोजीशन. इफ यू आर वरीड अबाउट दैट, देन वन कैन टेक अ हाई ऑफ दिस. ये हाई जाने के बाद भी वन कैन मेक अ पोजीशन हियर, ये हाई जाने के बाद. ठीक है, यहाँ पे तो आपका एंट्री यहाँ पे डाल के रख दो 150 का यहाँ पे, और लो मतलब ये स्टॉप लॉस रहेगा, ये 120 मतलब आपका स्टॉप लॉस रहेगा. सो योर फर्स्ट टारगेट विल बी, जितना स्टॉप लॉस है एटलीस्ट 1:1, तो वो 200 तक चला गया था. लाइक दैट वे वन कैन टेक अ एंट्री इन ऑप्शन. ऑलवेज एटीएम सिलेक्ट करना है. फिर मैं ऑप्शंस में कोई इंडिकेटर नहीं लगाता. ऑप्शंस में इंडिकेटर मतलब एटलीस्ट वन कैन सिलेक्ट द आरएसआई ऑल्सो. देखो मेरा टारगेट आ गया 170 डॉट, ये पहले बताया था ना मैंने कि 130 के बाद 170, ये सब जगह पे फॉलो होता है. तो मैं चार्ट नहीं देखता. मुझे अगर यहाँ पे देखना है तो मैं देख लेता हूँ, हाँ भाई मेरा 130 या 150 पे एंट्री रहेगा. माय सेकंड टारगेट 170, 190, 230, दीज आर माय टारगेट्स. ये टारगेट फिक्स रहते हैं ऑलमोस्ट हर एक चार्ट पे. ये मेरे प्रो बैच के स्टूडेंट्स को पता होता है कि कैसे टारगेट्स निकालना है, या एडवांस बैच के तो और उससे भी बेटर रहता है. ये एग्जैक्टली ज्ञान नंबर के यहाँ पे जाके रुका था 14,875 के यहाँ पे. ठीक है, सो दीज आर द प्रोसेस. ओके, अलॉन्ग विद दैट, अगर किसी को नहीं पता है कि टारगेट कैसे निकालने हैं, तो आई विल एक्सप्लेन द टारगेट्स ऑल्सो. लेट अस गिव मी द 2 minutes. कुछ क्वेश्चन मत पूछो, ये क्वेश्चंस मैं पढ़ने वाला नहीं हूं, मैं आपको क्वेश्चंस पूछने के लिए टाइम दूंगा. सो लेट अस से इन द सॉफ्टवेयर नंबर 2 along with the PDH PDL, this is a PDH and PDL, so I will mark R1, R2, R3, S1, S2, S3. Okay, done. Okay, so what is this R1, R2, R3? These are the my Fibonacci labels. ये labels हैं, जो मतलब अगर किसी को labels find out नहीं करने आते तो आप वैसे भी labels find out कर सकते हो. ठीक है, ये मैंने मार्क कर लिया R1, R2, R3, S1, S2, S3. So what is the criteria? If I'm expecting a breakout here, PDH के यहाँ पे breakout अगर expecting कर रहा हूँ, then my next target will be this only, red line. फिर आपको एक्स्ट्रा टारगेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दीज आर द फिबोनाची लेवल्स होंगे. ये फिबोनाची लेवल्स है सॉफ्टवेयर नंबर 2 में, R1, R2, R3. अगर आपको अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली मंडे के दिन, फ्राइडे थर्सडे के दिन, दिस इज द फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल का लो था. दैट लो इज नथिंग बट दैट माय रेजिस्टेंस लेवल ओनली. जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तो वन कैन यूज दैट टाइप ऑफ टेक्निक ऑल्सो. जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है, माय नेक्स्ट टारगेट विल बी दिस पीडीएल ओनली, क्योंकि इन बिटवीन कुछ था ही नहीं. और दिया उसने, यहाँ पे ही सपोर्ट था ये 14,700. एंड जैसे यहाँ से रैली चाहता है, देन माय फर्स्ट टारगेट विल बी दिस, सेकंड टारगेट विल बी पीडीएच, एंड थर्ड टारगेट विल बी दिस. सो लाइक दैट वे में वन कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑल्सो. देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे ओपन और हाई सेम ही था. दिस इज अगेन अ सेटअप. दीज आर द सेटअप्स. अरे सेटअप्स तो कचरे के जैसे अवेलेबल है. यू कैन सिलेक्ट एनी वन ऑफ द सेटअप्स एंड वर्क, ट्राई टू वर्क ऑन दैट. दिस इज अगेन अ गैप डाउन विद ओपन एंड हाई सेम. इफ दैट लो, अगर ये लो चला जाता है, वन कैन टेक अ एंट्री. दैट्स अ बेसिक थिंग. तो इसके लिए कोई प्राइस एक्शन का क्लास लगाने की जरूरत नहीं. दिस इज योर स्टॉप लॉस. अकॉर्डिंग टू दैट वन कैन टेक द पुट के ऑप्शन में कोई ट्रेड ले सकता है. तो जैसे ये लो जाता है, यहाँ पे एंट्री लो, यही स्टॉप लॉस रहेगा फिर आपका.
तो इसका भी अगर पुट का चार्ट बताना है मुझे, लेट अस से आई विल एक्सप्लेन दैट आल्सो. सो हियर आल्सो आई विल टेक द 14700 का पुट निफ्टी. आई विल एक्सप्लेन दैट आल्सो कि वो एक्सपायरी का होगा. ठीक है, आई विल टेक द पुट. सो दिस इज माय चार्ट उस दिन का, 31st का, बराबर है. दिस इज द 31st का चार्ट. तो इसका पुट मुझे बाय करना है. कैसे? जैसे ये लो जाएगा वैसे. तो पुट अगर मुझे बाय करना है, इसका लो जाएगा मतलब इसके हाई के इधर मुझे बाय करना है. लेटेस्ट से आपने यहाँ पे कहाँ पे बाय कर लिया, वो नीचे आ गया, देखो ये नीचे आ गया, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होगा, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ये लो के यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा. ठीक है, तो वही मैं डिसाइड करता हूँ. देखो ये लो गया नहीं पूरे दिन भर में, वो जस्ट टच करना है फिर उसके बाद ऊपर गया. सो लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं. फिर लेवल्स कैसे डिसाइड करना है, फिर वो मैं ऑप्शन कोर्स में, प्रो बैच में, एडवांस बैच में फिर उसके चार्जेस लेते हो. देखो फ्री में अभी देखने के लिए आपको पता चल जाएगा, हाँ ये यहाँ पे एंट्री लिया तो ये स्टॉप लॉस, बट यही क्यों नहीं, ये क्यों नहीं लिया, फिर उसके आंसर्स को आपको यू कैन गेट दैट ऑल दैट आंसर्स इन माय ऑप्शन बैच. की उसको फिर ओआई डेटा के साथ each and every setup, how to combine that setup, I will give the entire detail in that course. So one can take a entry here, stop loss is here, and one can wait for the target, और जो टारगेट देके गया और देना ही था उसको टारगेट, क्योंकि then one can add also कि नीचे आने का ऐड. लोग क्या करते हैं, 10 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाते हैं. In volatile market that will not work. 10 points 20 points, that's why I'm avoiding this type of nowadays. In paid course I'm try to avoid giving the calls on nifty and bank nifty, because stop loss is big na. For nifty minimum stop loss is 40 points nowadays, and for the bank nifty minimum stop loss is 100 points minimum, हाँ. एग्जैक्ट स्टॉप लॉस तो 200 पॉइंट्स का बन रहा है nowadays बैंक निफ्टी में. टू मच वोलाटाइल मार्केट. सो वन कैन एक्सपेक्ट, अगर शॉर्ट करे तो वन कैन एक्सपेक्ट रैली टिल हियर, जो यहाँ पे दिया देखो डॉट, और वहां से सपोर्ट पे गया. सो इन दिस टाइप ऑफ मार्केट these levels are working nicely. Here also देखो, this R3 break, R3 breaks means that type of breakout only. These are R1 R2 R3 ना. R3 breakout means strong breakout. तो ये breakout दिया उसने उस दिन. ठीक है, so one can use along with that, one can use the software number one also. देखो सॉफ्टवेयर नंबर वन ने वहां पे लॉन्ग दिया था, फिर वो लो नहीं चला गया, हाई चला गया, हाई अलोंग विद दैट हाई R3 का भी ब्रेकआउट हुआ. फिर सॉफ्टवेयर ऑल्सो लॉन्ग दे रहा है. मेरा प्राइस गैप अप हुआ, दैट इज अ प्राइस एक्शन स्टडी. गैप अप के बाद 5 मिनट्स का हाई भी चला गया है. ऑलवेज गैप अप गैप डाउन के बाद फर्स्ट 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स का कैंडल का हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अलोंग विद दैट R3 का ब्रेकआउट था. My software signals giving the long signal. Along with that, if one can check the Nifty ka OI data sheet, if that is also giving the bullish signal, then one can take a long position like that way. सो दैट टाइप ऑफ स्टडी आपको करना है. सिर्फ इंडिकेटर होके नहीं चलता. यू कैन कंबाइन ऑल दैट थिंग्स. व्हाट इज अ प्राइस एक्शन, मैंने क्या बोला, प्राइस एक्शन. व्हाट इज अ प्राइस एक्शन हियर, प्राइस इज गैप अप सस्टेन. हाउ टू डिसाइड द गैप अप सस्टेन, वेट फॉर इनिशियल 5 to 15 मिनट्स. इफ 5 to 15 मिनट्स का हाई या लो ब्रेकआउट होता है, अगर हाई ब्रेकआउट हो रहा है देन दैट इज अ बुलिश सिम्टम. इफ लो ब्रेक डाउन हो रहा है दैट इज अ बेरिश सिम्टम. दैट इज द फर्स्ट प्राइस एक्शन. Second is my indicator, that is the software also giving the buy signal. Along with that, if the OI data sheet also giving the buy signal, then one can buy that option का call. Here one can buy 14,700 या 600 का call buy कर सकते थे कभी 30th को, है ना. 14,600 का या 700 का कॉल भी चल जाता था 30th को. देखो 30th. So one can take a long position here only. 2848 के यहाँ पे stop loss will be this only. 226. ये नहीं stop loss होगा अभी, यहाँ पे यही stop loss होगा क्योंकि ये swing high भी था. तो ये stop loss था 225 का. 225 is again my GAN number. एंड फिर वेट करो, फिर अच्छा टारगेट दिया उसने, कहाँ तक 380 तक चला गया. So one can decide that way also. That is the software number 2 के tools है. So I am explaining the software number 2 के tools along with that. So this is R1, R2, R3, S1, S2, S3, PDH, PDL. So now I am just using this PDH, PDL रख रहा हूँ. And now I am attached with CPR. बहुत सारे पैरामीटर्स यहाँ पे मैंने दिए. आई एम नॉट डूइंग एनी जादू और समथिंग है, ये सब अवेलेबल है फ्री में. जस्ट मेरा काम क्या था, सब मॉडिफाई करके एक सिग्नल में मैंने मर्ज कर दिया, दैट्स इट. सो अलोंग विद दैट
सो दिस इज द सीपीआर का कंसेप्ट ऑल्सो. मैंने कुछ सीपीआर का एक वीडियो भी बनाया हुआ है, यू कैन वॉच दैट सीपीआर वीडियो ऑल्सो. दीज आर द सीपीआर, दिस इज अ मिडल पिवोट एंड अबव एंड लोअर लाइन मिला के एक सीपीआर बनता है. लाइक, so one can use that technique also, narrow range, broad range. So these are the narrow range. I will give the one signal. These are the narrow range. Whenever there is a narrow range CPR, मतलब CPR एकदम पतला हो जाता है, स्क्वीज होता है, स्क्वीज सीपीआर, एट द टाइम ह्यूज ब्रेकआउट पॉसिबल. ये ऐसे डे मत मिस करो. हफ्ते में ऐसे एक दिन तो, एक या दो दिन निफ्टी रहता है ऑलवेज नैरो रेंज, उस दिन बड़ा ब्रेकआउट आ जाएगा, समझ जाने का. ठीक है, इसी तरह मैं देखा था लाइव एग्जांपल में. देखो ये नैरो था, बड़ा ब्रेकआउट दे दिया. और एक मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ. सेकंड होता है एक वाइड रेंज सीपीआर होता है. दिस इज अ वाइड रेंज सीपीआर. इन द वाइड रेंज सीपीआर ऑलवेज मार्केट इज इन द साइडवेज मोड. सो इन दैट केस ट्राई टू अवॉइड द ऑप्शन बाइंग. वो ऊपर नीचे करता रहेगा. देखो जब भी नैरो रेंज सीपीआर रहेगा ना, सीपीआर इज नैरो, देन एट दैट टाइम बाइंग द ऑप्शन. And whenever the wide range CPR, always try to short the option. Selling will be the best criteria in that case. One short note. ये नॉर्मल है, तो इसमें बाय सेल दोनों कर सकते हो. यहाँ पे भी देखो ऊपर से गिरा और डॉट सीपीआर के यहाँ पे ही सपोर्ट लेके ऊपर भागा. तो सीपीआर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑल्सो. ओके, आई विल ट्राई टू गिव द सम एग्जांपल्स ऑल्सो. दिस इज नॉट अ क्राइटेरिया. देखो ये वाइड रेंज था बट स्टिल गिविंग द ह्यूज रैली. ठीक है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है. बट यहाँ पे ये डाउन जाने का और एक रीजन था. क्या रीजन था मैं बताता हूँ. वो मैंने सीपीआर में बताया था. दिस इज ओपन और हाई सीन था. सीपीआर इज ऑल्सो बिलो टू द प्रीवियस डे एंड पीडीएल ब्रेक किया था डायरेक्टली फर्स्ट कैंडल. दैट इज वन ऑफ द माई सेटअप जो सीपीआर में सिखाता हूँ मैं. ठीक है, इसके लिए वो बड़ा रैली थी. इसके लिए नॉलेज इज अ किंग. बहुत जन बोलते हैं यार मुझे बस मुझे फ्री टिप्स चाहिए, मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए. नो, नॉलेज इज अ किंग. इफ यू हैव द नॉलेज ना, देन स्काई इज अ लिमिट इन द स्टॉक मार्केट. तो आपको सिर्फ माइंड मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट पे ध्यान देना है. दैट इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्किल, वो लोग नहीं कर पाते. अभी बहुत सारे मेरे भी एडवांस बैच के स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लॉसेस कर रहे हैं. दे हैव द ह्यूज नॉलेज, बट मनी मैनेजमेंट कहाँ पे तो हो रहा है. मतलब कभी कभी 20,000 प्रॉफिट दिखता है बट बुक नहीं करते. और चाहिए और चाहिए. ग्रीड, ग्रीड और फियर, ये दोनों को बैलेंस करने आना चाहिए इन लाइव मार्केट. दैट्स अ स्किल ना. यहाँ पे देखो, this is a, is it a narrow range CPR? Yeah, narrow range CPR. Then when is your entry according to the software? When is your entry? अभी ये बताता हूँ. यहाँ पे ये जब पीडीएल ब्रेक करेगा, पीडीएल मतलब इसने लो भी ब्रेक कर दिया. दिस इज अ पीडीएल, मेरा नैरो रेंज है. आई विल एंटर हियर ओनली. आई विल attach the software signal also. This is a 3 minute. Then I will use 1 minute. बट 3 मिनट में उसने शॉर्ट दिया हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट दिया, बट मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूंगा, यहाँ पे शॉर्ट करूंगा. और आई विल एंजॉय द रैली टिल हियर. इज दैट क्लियर? along with the software number 1. if you want, then you can, one can use the software number 3 also for that. और फिर वहां पे शॉर्ट करने के बाद, यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद वन कैन बुक देयर पोजीशन हियर ऑल्सो. देखो मार्केट वहां से रिवर्स हो गया. So that is the beauty of the software number 3. That gives the support and resistance in the live market. ये live market में प्रिंट होता है, और एक बार प्रिंट हो गया लाइन्स तो पूरे दिन भर में होते ही नहीं. तो दीज आर माई सेटअप. इसको साथ में नहीं यूज करना है, वन बाई वन यूज करना है. मतलब पहले तो मैंने सॉफ्टवेयर 3 को बंद रखा है. आई विल यूज दिस ओनली. या सीपीआर है, वाओ सीपीआर इज एन एरो रेंज. इन द मॉर्निंग ओनली आई आइडेंटिफाई सीपीआर इज एन एरो रेंज. मैं लिख लेता हूँ सीपीआर इज एन एरो रेंज, मीन्स मार्केट टुडे विल गिव द ह्यूज ब्रेकआउट. फिर देन माय गैप थ्योरी, अभी मैंने बताया रोज गैप अप गैप डाउन होता है. तो एक फ्री में टिप्स दिया, पहले 5 मिनट 15 मिनट का लो जाता है, शॉर्ट करो. अलोंग विद दैट आपका निफ्टी का ओआई डेटा शीट बेरिश होना चाहिए. अलोंग विद दैट योर सॉफ्टवेयर शुड बी बेरिश. शॉर्ट सिग्नल होना चाहिए आइदर 1 मिनट और 3 मिनट. देन वन कैन टेक अ शॉर्ट सिग्नल और वन कैन बुक देयर पोजीशन नियर टू द सॉफ्टवेयर नंबर 3. मतलब क्या, जब भी गैप डाउन होता है तो वेट करो पीडीएल ब्रेक होने का. फर्स्ट थिंग दैट इज अ प्राइस एक्शन. तो पहले 15 मिनट और 5 मिनट का भी कैंडल ब्रेक डाउन हो रहा है. सेकेंड, आप ओआई डेटा शीट देखो, वो भी मेरा बेरिश होना चाहिए. थर्ड थिंग, विद इन अ 1 वीक आई विल अरेंज द ओआई डेटा शीट ऑल्सो. उसका भी एक लेक्चर लूंगा. वो कभी होगा क्या होगा आज ही अनाउंस करूंगा. एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे शॉर्ट होने के बाद आप यहाँ तक उसको वेट कर सकते हो. फिर यहाँ पे बुक कर लो. बहुत हो गया. यहाँ से देखो ना कितना था, 14,700 से यहाँ तक भी अगर करते 600, 100 पॉइंट्स का रैली, बहुत हो गया. आपको ऑप्शन में 50-60 पॉइंट मिलेंगे, बहुत हो गया. एक दिन के लिए 5,000 मिले, शट डाउन कर दो. ओके, सो one can take decide that type of approach in that. Okay, so
Along with that CPR, I'm using in software 2. I'm explaining the software 2 only in details. I'm using two moving average. ठीक है, these are the two moving average. These are the two moving average मतलब 20 and 50 का moving average है. I'm not hiding anything. These are my two favorite moving average. If that two moving average crossover in the downside means market is a bearish. तो यहाँ पे तो डाउनसाइड पहले से था, बट मैं सिर्फ मूविंग एवरेज पे क्रॉसओवर पे मैं शॉर्ट सिग्नल ले रहा हूँ ना, दैट इज अ बचकुंडा सेट. वो बच्चे लोग यूट्यूब पे सीख के करते हैं. नहीं, यू आर द प्रो ट्रेडर. अगर प्रो ट्रेडर बनना है तो मूविंग एवरेज इज नॉट अ सेटअप. बट यहाँ पे जस्ट आइडेंटिफाई करने दिया कि या मूविंग एवरेज इज ऑल्सो इन सपोर्टिंग फेवर, कि या यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, या मूविंग और एवरेज ऑल्सो टू मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर. अगर ये टू मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर डाउन साइड में, मतलब ग्रीन लाइन डाउन साइड में है, मतलब मुझे शॉर्ट ही करना है. देखो यहाँ पे भी शॉर्ट ही करना है, यहाँ पे भी शॉर्ट ही करना है. कल क्या हुआ, कल का मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये लॉन्ग ही करना है. इसके लिए दिया जस्ट शॉर्ट करना है कि लॉन्ग करना है, उसको डिसाइड करने के लिए मैंने दिया. देखो यहाँ से ये बुलिश होना स्टार्ट हो गया, तो मेरा एंट्री यहाँ पे ही था ना. तो 20 एंड 50 का क्रॉस ओवर, दैट विल गिव द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट की. अगर ग्रीन लाइन नीचे से ऊपर क्रॉस करके, दैट इज नॉट द क्रॉस ओवर पे आपको एंट्री लेना है. जस्ट क्रॉस, जस्ट कंबाइन ऑल द पैरामीटर. इट्स अ खिचड़ी. जैसे अपने घर पे अपनी वाइफ या मम्मी खिचड़ी बनाती है, तो कैसे सब पैरामीटर साथ में लेके फिर उसको मिक्सिंग करते. सब साथ में नहीं करते, हर एक का टाइम होता है कि सॉल्ट कभी डालना है, या चटनी कभी डालना है, नमक कभी डालना है, हर एक हल्दी कभी डालनी है, या हर एक पैरामीटर का टाइम होता है कभी डालना है. तो ये भी ट्रेडिंग इज लाइक अ पैरामीटर. अगर आप एम नंबर ऑफ इंडिकेटर यूज करते हो, वो पैरामीटर यूज करते. मैं क्या करता हूँ, प्राइस एक्शन पहले दिन करता हूँ. लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन को लेस इंपॉर्टेंट देता हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में पहले से प्राइस एक्शन फिट हो जाता है कि हाँ भाई प्राइस एक्शन बुलिश है, मुझे बाय ऑन डिप्स करना है, दैट्स इट. फिर लाइव इंट्राडे मार्केट में फिर आई बिलीव ऑन द माय सॉफ्टवेयर सिग्नल्स अलोंग विथ निफ्टी ओआई डेटा शीट अलोंग विथ माय गैन नंबर्स. बस ये तीनों को मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन के साथ वो देखना मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि क्लाइंट्स भी हैंडल करने होते हैं. अगर आप कर पाओ तो दैट्स वेल एंड गुड. ओके, सो ये था मूविंग एवरेज का, टू मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन. सो वन कैन यूज दैट टू मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन, और एट अ टाइम आप सारे भी पैरामीटर्स यूज कर सकते हो. ये था मेरा सॉफ्टवेयर नंबर 2 टूल, जो मैं रेगुलरली यूज करता हूँ अलॉन्ग विद द सीपीआर एंड ऑल. ओके, आफ्टर दैट बहुत जन मुझे पूछते हैं, सिर्फ आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस से भी कर सकते हो. अगर आपको करना ही है तो वेन एवर मार्केट इज नियर टू द सपोर्ट जोन, ये सपोर्ट जोन अगर आया है, वन कैन बाय द कॉल ऑप्शन. डोंट ब्लाइंडली आप बाय कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. मतलब यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं, यहाँ पे वन कैन वेट फॉर दिस सिग्नल लाइन ना. ये सिग्नल लाइन भी मैंने दिया, ये सिग्नल लाइन का वेट करो. ये सिग्नल लाइन बाय को बोलता है, तो यहाँ पे बाय करो और यहाँ पे शॉर्ट करो. ऑलवेज मार्केट रिस्पेक्ट करता है ये लेवल्स को, अगर सॉफ्टवेयर नंबर 3 अगर किसी को यूज करना है तो. अलॉन्ग विद दैट वन कैन यूज द सॉफ्टवेयर नंबर 1 ऑल्सो. अगर ये सपोर्ट के यहाँ पे आया है, ये यहाँ पे बाय बोल रहा है, बट सॉफ्टवेयर नंबर 1 मेरा यहाँ पे बाय बोल रहा है, वन कैन टेक अ बाय पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन हियर, यहाँ पे ले सकते हो. अगर आपके पास ओआई डेटा शीट नहीं है तो, अगर आपके पास ओआई डेटा शीट नहीं है तो आपका एंट्री यहाँ पे आ जाएगा. क्यों? बिकॉज देर इज अ सपोर्ट जोन. सपोर्ट जोन के साथ सॉफ्टवेयर 1 ऑल्सो गिविंग द लॉन्ग सिग्नल. बट अकॉर्डिंग टू द निफ्टी ओआई डेटा शीट, मैं बता रहा हूँ मंडे थर्सडे के दिन यहाँ पे निफ्टी का ओआई डेटा शीट बुलिश हुआ था. सो माय एंट्री विल बी हियर ओनली 14,750, वहां से 100 पॉइंट दिया. दैट्स अ गुड ना स्ट्रेटेजी फॉर द on the expiry day. So that is my software number 3 ka skill. Along with that, one can use only software number 1 also. Software number 1 also giving the support and resistance zone. मैंने hide किया, ये style में जाके one can draw the support and resistance zone also. Okay, like that one. Many software clients saying कि yeah, there is no support and resistance zone advanced level में. So one can take the 5 minutes और 15 minutes का charts and previous day के जो support resistance होते हैं वही draw कर सकते हैं. मतलब अभी के लिए यही previous line का ही resistance line था, वो resistance बना. अभी ये सपोर्ट बनेगा मंडे के दिन 14,800, या ये सपोर्ट बनेगा, या ये सपोर्ट बनेगा. दीज आर द 4 लाइंस. इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो डायरेक्टली 15,000 है मंडे के दिन. अगर ब्रेकआउट दिया इसके ऊपर 14,890 के ऊपर अगर ब्रेकआउट दिया तो दैट विल गिव द ह्यूज रैली. सो वन कैन यूज दैट. बट इफ यू आर यूजिंग द सॉफ्टवेयर नंबर 3,
देन ये यूज करने की जरूरत नहीं है along with that because we already know ना what is support and what is resistance और फिर मैंने levels already mark किए रहते हैं मेरे दिमाग में होते कि ये breakout करेगा then मेरा 14,900 आ सकता है 970 आ सकता है 15,000 आ सकता है so these are the levels तो आज के section का one of the important role क्या था first is a price action आपको पहले दिन ही price action analysis ये सब निफ्टी था now I will explain the bank nifty also because majority are interested in bank nifty ठीक है so first is a price action था सेकेंड वन इज द लेवल्स लेवल के साथ आप यू कैन यूज द टूल्स ऑल्सो वन कैन यूज द सॉफ्टवेयर ऑल्सो वन कैन यूज द बेसिक इंडिकेटर ऑल्सो थर्ड ओआई डेटा दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अगर ओआई डेटा आपके साथ नहीं है तो आप बाय या सेल नहीं कर सकते एटलीस्ट वहां पे चेंजेस दिखने चाहिए ठीक है ओके नाउ आई विल टेक द बैंक निफ्टी का एग्जांपल चलो बहुत जन लेट ज्वाइन हुए थे तो अभी एक्सप्लेन कर दे सेम बैंक निफ्टी भी कैसे पहले फर्स्ट एनालाइज द प्लेन चार्ट्स दैट इज फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द डे वाइज डे वाइज आई विल स्टार्ट क्या दिख रहा है डे वाइज में so in day wise you are checking it's giving a range bound market it's a range bound market plus minus में range bound with a huge volatility because daily they are bank nifty giving the 500 to 700 points का rally but this is a gap ना ये मैंने एक वीडियो में बताया था प्राइस एक्शन वाइज दिस इज अ गैप ना तो ये गैप के नीचे जाएगा देन मार्केट विल बी बेरिश नाउ मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है ये हैमर स्ट्रॉन्ग बेरिश अभी इसके नीचे है ये 32,370 के नीचे जाएगा तो अदरवाइज ये मेरे लिए बुलिश है अभी बुलिश कभी होगा मंडे के दिन लॉकडाउन है आई नो बट ठीक है प्राइस एक्शन वाइज इसके ऊपर ये हाई जाता है तो दिस हाई इज नथिंग बट 33,990 मतलब 34,000 के ऊपर मुझे बाय करना है बैंक निफ्टी अगर करना है 34,000 के ऊपर तो वो जाएगा कहाँ पे 34,400 मतलब डायरेक्टली स्ट्रेट अवे 400 पॉइंट्स का रैली देन 34,400 के बाद 34,700 एंड 35,000 दीज आर माय लेवल्स ये मैंने डिसाइड कर लिया देन आई विल फॉलो द लोअर लेवल्स कुछ भी लेवल्स आप अवरली और 15 मिनट्स देख सकते हो जैसे मैंने वहां पे अवरली देखा मैं यहाँ पे 15 मिनट्स देख रहा हूँ ठीक है क्योंकि मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है ऑलरेडी आज मॉर्निंग में लेक्चर हुआ था एडवांस बैच का तो वहां पर भी मैंने एक्सप्लेन किया था यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मुझे दिख रहा है ये मेरा लाइन है सिग्नल लाइन और दिस इज माय इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नॉट क्लियर बट ठीक है सो इसके लिए बैंक निफ्टी इज ऑल्सो गिविंग द ब्रेकआउट और मेरे सॉफ्टवेयर सिग्नल ने भी ब्रेकआउट दिया हुआ है अल्गो ने भी बाय किया हुआ है यहाँ पे सो सो दीज आर माय प्राइस एक्शन सो दिस प्राइस एक्शन फर्स्ट डे ही एनालिसिस हो जाना चाहिए सो वन कैन डिसाइड दिस प्राइस एक्शन वन डे बिफोर मार्केट स्टार्ट होने से पहले तो प्राइस एक्शन का लो लाइन मार्केट में नहीं होता पहले डिसाइड कर लो हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से व्हाट इज डेली व्हाट इज अवरली व्हाट इज 15 मिनट्स देन फर्स्ट डिसाइड व्हाट इज बाय ऑन डिप्स करना है कि सेल ऑन रैली करना है वो भी आप डिसाइड कर सकते हो पहले दिन तो ये माइंडसेट फिक्स हो जाता है ये कभी कभी ह्यूज वोलेटाइल मार्केट में लाइव मार्केट में भी प्राइस एक्शन देखना पड़ता है हाँ बट मैं क्या कर रहा हूँ मैं पहले दिन ही देख लेता हूँ फर्स्ट थिंग तो इन द मंडे के लिए ये लेवल ब्रेकआउट होना मेरे लिए बहुत जरूरी है तो आई विल ड्रॉ अ लेवल ये लेवल दैट इज 34,000 का अप्रोक्सीमेटली लेवल है ये लेवल अगर जाता है तो दीज आर माई लेवल्स तो ये पहले से दिमाग में है ना then my first target will be this 34,370 and my second target will be this 34,700 जो मैंने बताया और फिर नेक्स्ट टारगेट विल बी 35,000 दीज आर माय लेवल्स ये जो पहले से फिक्स है मेरे प्री डिफाइंड लेवल्स होते हैं जो मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ वो लोग भी मार्क कर लेते हैं ये लेवल्स है दीज आर माय लेवल्स और फिर मैं बाय ऑन डिप्स करूंगा और ये मेरा स्ट्रॉन्ग जोन होगा यहाँ पे ये दिख रहा है देखो ये स्ट्रॉन्ग जोन है मेरा तो यहाँ पे भी मार्केट अगर आता है तो मैं बाई करूंगा ना बाय ऑन डिप से मेरा तो यहाँ पे मुझे मिलता है तो वेल एंड गुड इसके ब्रेकआउट के ऊपर जाता तो बाई करूंगा लाइक दैट दैट इज द फर्स्ट स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी का ये मैंने डिसाइड कर लिया प्राइस एक्शन में फिर मैं सेकंड क्या करूंगा ये खत्म हो गया फिर ये मेरे चार्ट्स ऑलरेडी एक लेवल पे रहेंगे देखो मैं डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ ठीक है
बहुत रेयरली लोग बताते हैं, बट मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। अभी मैं क्या करूंगा, फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। मंडे को भी क्या किया उसने देखो, डॉट पीडीएल के यहाँ पे आके फिर सपोर्ट लेके पीडीएच को भी क्रॉस कर दिया था, बट मंडे को भी मुझे लगता है कि वो ब्रेकआउट ही देगा। आफ्टर दैट क्या करूंगा मैं, मेरा पीडीएच और पीडीएल लेवल ड्रॉ करूंगा। अगर आपके पास नहीं है सॉफ्टवेयर तो मैन्युअली ड्रॉ करो। यहाँ पे लिया मैंने, दिस इज अ पीडीएच जो मैंने मैन्युअली ड्रॉ कर लिया। दिस इज पीडीएल, वो भी मैंने मैन्युअली ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मुझे मिलता है तो वेल एंड गुड। या बाय ऑन डिप्स मुझे करना है, यहाँ पे भी एक डिप्स मुझे अगर मिला देन आई कैन यूज दिस डिप्स ऑल्सो। ये भी एक डिप में ले लूंगा। 33,500 अभी 900 चल रहा है। अगर कल 34,000 के ऊपर ही ओपन हो रहा है तो मैं डायरेक्टली बाय कर लूंगा। अलॉन्ग विद दैट मैं क्या देखूंगा, अभी मैंने 5 मिनट्स देखा है, देन आई विल यूज द 3 मिनट्स का चार्ट। 3 मिनट्स के चार्ट में मेरा सॉफ्टवेयर नंबर 1 सिग्नल बाय देना चाहिए, जो बाय है ऑलरेडी। 5 मिनट्स में हम लोग व्हाट वी आर डूइंग इन द अल्गो, अल्गो ने मेरा बाय यहाँ पे कर लिया। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट था, फिर शॉर्ट का स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये बड़ा शॉर्ट था, उसका भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ, वो कॉस्ट टू कॉस्ट गया। फिर ये लॉन्ग का स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पे, फिर इसने शॉर्ट लिया। फिर एक दो छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट हो गए, फिर अब ये बड़ा रैली चल रहा है जो 11,000 प्रॉफिट में यहाँ से। यहाँ पे अल्गो ने बाय करवा लिया, कर लिया डायरेक्टली। ठीक है, जो ऑलरेडी प्रॉफिट में है 11,000 के। अगर आपको देखना है तो मैं मैन्युअली भी दिखा सकता हूँ। दैट इज कुछ हिडन एजेंडा नहीं है वहां पे, जो है वो है। ठीक है, तो सबके अकाउंट्स में मैन्युअली बाय हो जाता है वहां पे। तो एक सारे क्लाइंट्स के सेव है मेरे इसमें ऑर्डर्स में। ये संडे के दिन ना आई थिंक प्रॉब्लम देता है। देखो ये 0-0 बता रहा है, संडे है ना आज, तो ये अलाइज ब्लू सैटरडे संडे के दिन यही प्रॉब्लम होता है इसका। ये सब ऑर्डर्स वगैरह सब 0-0 बता देता है। बट यहाँ पे 11,000 का प्रॉफिट हम लोग का गोइंग है। ठीक है, अगर कोई अल्गो का है यहाँ पे तो वो बता सकते हैं प्रूफ के लिए, अगर बताना है तो। ठीक है, सो दीज आर द लेवल्स। यहाँ पे बाय हुआ था एग्जैक्टली 760 के यहाँ। बैंक निफ्टी का चल रहा है ना। यहाँ पे एग्जैक्टली ये बाय हुआ था 34,400 के यहाँ पे। और अभी वो 970, मतलब 11,000 का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे। 500 पॉइंट्स का रैली ले लिया उसने, 400-500 पॉइंट का। और आई एम एक्सपेक्टिंग 400-500 पॉइंट। तो अल्गो में वही है, बैंक निफ्टी अल्गो में, कि लेता है तो भी बहुत बड़े बड़े रैली लेता है। मतलब जब 5 मिनट्स का चार्ट है ना, यहाँ पे लॉन्ग लिया तो ये यहाँ तक चलता रहेगा। ये हम लोग ने रैली पूरा लिया था, ये रैली, ये जो शॉर्ट का था, ये शॉर्ट और ये लॉन्ग का यहाँ था। 40,000 का रैली था अल्गो केस में 5 मिनट के। तो बैंक निफ्टी अल्गो फ्यूचर इज वेरी गुड, जिसके लिए 2.5 lakhs का मार्जिन लगता है। इफ दोज आर इंटरेस्टेड इन दैट अल्गोरिदम, कि जहाँ पे इमोशनलेस ट्रेडिंग है भाई, एक दिन प्रॉफिट होगा बट जिस दिन होगा उस दिन रैंडमली, मतलब ये कॉल शायद मुझे और 500 पॉइंट का रैली देगा तो 1,000 पॉइंट का प्रॉफिट बुक होगा। 1,000 पॉइंट मीन्स 25,000, नॉट बैड डील ना। ऐसे महीने में 3-4 ट्रेड भी मिल गए तो भी मेरे 40-50,000 इजीली मिल जाते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के अल्गो में, विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 to 2.5 lakhs। नॉट बैड डील ना। और इमोशनल लेस ट्रेडिंग वहां पे होता है। सो दैट इज माई एम, कि फिर सॉफ्टवेयर नंबर 1 आई विल चेक कि दैट इज लॉन्ग और है कि नहीं। यहाँ पे और एक टिप मैं आपको देना चाहता हूँ। वेन एवर यू आर बाइंग एनी टाइप ऑफ ऑप्शन, तो आप एक बार ना आरएसआई चेक कर लो कि आरएसआई आपका 50 अबव है क्या फॉर पर्टिकुलर टाइम। मतलब अगर आप पुट बाय कर रहे हो तो आपका 50 के नीचे होना चाहिए। अगर इफ यू आर बाइंग द कॉल देन 50 के ऊपर होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट बेसिक क्राइटेरिया ऑफ द आरएसआई, अगर आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो तो। So that is the software number 1, कि buy और sell आपको चेक करना है in 3 minutes and 5 minutes. Nowadays the market is too much volatile. If you are using the index option, then use 3 minutes time frame. If you are using the stock options, stocks में देखना तो 5 minutes का use कर सकते हैं। And if you want to do the positional, then one can use 15 minutes to 30 minutes. But I will not recommend in such type of volatile market में मैं recommend नहीं करता कि आपको इसमें ट्रेड करने के लिए 15 मिनट्स एंड 30 मिनट्स पोजिशनल, क्योंकि कुछ भी हो रहा है, डेली गैप अप और गैप डाउन हो रहा है। दैट्स द बेसिक थिंग। ठीक है, सो या वन ऑफ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द टाइम डिके इन द ऑप्शंस बाइंग। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल, मैं बोलूँ कि डिसएडवांटेज है ऑप्शन बाइंग का, क्योंकि वहां पे टाइम डिके होते रहता है। तो जो ऑप्शन सेलर को बेनिफिट्स होता है,
तो इसके लिए मैं बोलता हूँ ना कि टाइम डीके से बचना है, तो टाइम डीके में डेल्टा फैक्टर और टाइम डीके जो होते हैं, वो जो दो फैक्टर इफेक्टिव होते हैं, वो एटीएम के यहाँ पे कम इफेक्ट होता है उसको। तो ऑलवेज एटीएम सिलेक्ट करो। उसके पीछे का रीजन क्या होता है कि एट द मनी में उसका इफेक्ट बहुत कम होगा, कि ऑप्शन सेलर जो चाहते हैं कि मुझे जीरो हो, तो एट द मनी वाला तो जीरो नहीं होगा ना, आउट ऑफ द मनी वाला होगा। सो दैट्स वाई ऑलवेज सिलेक्ट द एटीएम स्ट्राइक प्राइस, कि जिससे फिर आपको टाइम डीके का या वोलाटिलिटी का इतना ज्यादा इफेक्ट ना हो पाए, जो जीरो होने के चांसेस होते हैं। उसके पीछे भी बहुत बड़ा थ्योरी है सर, वो इन शॉर्ट बताना बहुत डिफिकल्ट है। इसके लिए तो मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ज्यादा आउट ऑफ द मनी भी लेना नहीं है, क्योंकि वो जीरो हो जाएगा बिकॉज ऑफ द टाइम डीके फैक्टर्स। और आपका मैक्स पेन इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे पीसीआर इंपॉर्टेंट होता है। वो सारे कंसेप्ट में निफ्टी डेटा ओआई एनालिसिस में एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीक। सो डोंट मिस दैट लेक्चर एट ऑल, और बहुत रीजनेबल प्राइस में, क्योंकि वो चार्ट्स के लिए लोग हजारों चार्ज करते हैं, ठीक है। तो So ये OI data sheet में मैं अभी what I mean guessing right from the beginning in the morning, I start using my OI data, not this particular sheet, and as you taught, मैं उसमें देखते रहता हूँ कि what is how much is the OI change, call versus put OI, and easily I get to know what is the signal, what positions the big people what they are taking, and accordingly मेरा जो सेटअप में जो मूव आता है आई कंकर दैट, मतलब वो साइमल्टेनियसली इसको चेक करता हूँ, बोथ आर मैचिंग, देन आई टेक द ट्रेड। इट इज आई मीन एब्सोल्युटली डूइंग रियली वेल। ओआई डेटा इज अ गुड, मतलब एक नया मेरे को एक टर्म कार्ड मिल गया उसका। आई गेट द कन्विक्शन दैट यस आई कैन टेक अ ट्रेड। गुड गुड गुड। वैसे मैंने बोला है कि वेट फॉर 5 to 15 मिनट्स वो कैंडल का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होने के लिए। सो फॉर द सेफर ट्रेडर्स 15 मिनट्स इज बेस्ट टाइम फ्रेम टू वेट फॉर द 15 मिनट्स। ये 15 मिनट्स के कैंडल वेट करो होने तक, तो यू विल गेट अ क्लियर आइडिया सर कि वेयर इज द मार्केट गोइंग ऑन, या अपसाइड और डाउनसाइड, अलोंग विद द ओआई डेटा शीट। अमर सर, और एक मुझे शेयर या करना है कि मार्केट में अभी ओआई डेटा इज वेरी ओपन, मतलब वो तो निफ्टी में भी अवेलेबल है, बट देयर आर सो मेनी स्ट्राइक प्राइस और सबका ओआई का टोटल होता है, बट आपने जैसे ये पर्टिकुलर ओआई डेटा शीट में सिर्फ निफ्टी मध्ये ओआई ट्रेड करणं स्ट्राइक म्हणजे सिलेक्ट किया, वेरी एक्टिव स्ट्राइक्स आप सिलेक्ट करते यस लय हो, मोठं उसकी क्षेत्र वजह आहे से ते, आपल्याला ते काहीच माहित नाही. एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ यस जाता यस है। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू यस टेल। या वो तो मैं बताऊंगा कि मार्केट में क्या जस्ट टोटल करके दे देते हैं स्लाइड। नो, आई एम नॉट गिविंग दैट टोटल, आई एम नॉट गिविंग द नेम आल्सो, देयर आर बिग ब्रांड आल्सो, दे आर चार्जिंग ह्यूज मनी, बट दे आर गिविंग द टोटल। नो, आई एम नॉट गिविंग द ओनली टोटल, दीज आर द एक्टिव मेंबर्स, जो लाइव मार्केट में एक्टिवली शॉर्टेड मेंबर्स है, उनका टोटल होता है, वो हम लोग देखेंगे आने वाले दिनों में, ठीक है। या इसमें सर एक्चुअली बहुत बेनिफिट। या I will tell you कि I always prefer a spot charts rather than the futures. I always prefer the spot chart. That is Nifty 50 पे मैं सब analysis करता हूँ, या बैंक निफ्टी spot पे, not the future price, because there is such a big difference, either premium या discount में होता है। तो actual जो analysis होते हैं, pro trader analysis होता है, that always do the analysis in the spot price, because उसके support resistance बहुत important होते हैं rather than futures के support resistance. Okay, so always do the ओके, analysis इन on the केस spot, not the future price. Just मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी तक जो मैंने बताया कि हमने प्राइस एक्शन वो सब देख लिया, वंस आई टेक द एंट्री, मैंने एंट्री ले ली, तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट एंड माइंड मैनेजमेंट। लोग क्या करते हैं, मेरे पास होता है 50,000, डायरेक्टली 50,000 के लॉट्स ले लेते हैं, 10 लॉट 20 लॉट। स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस का कुछ अता पता नहीं होता है डायरेक्टली, और फिर बड़े होप्स के लिए बैठे रहते हैं। इवन दो प्रॉफिट भी दिखता है 10,000, बुक नहीं करते, नहीं मुझे और 50,000 चाहिए। तो वो ग्रीड और फियर की वजह से जो 50,000 है वो लॉस कर देते हैं। ऐसे मैंने खुद लॉसेस किए, ट्रस्ट मी। टिल नाउ मैंने 20-25 लाख का लॉस किया था, जब भी मेरे पास नॉलेज नहीं था। 2013 14 15 की पहले की बात है। आई स्टार्टेड माई ट्रेडिंग, मैंने इन्वेस्टिंग 2007 से किया, तो मैंने भी लॉसेस किए, बहुत सारे लॉसेस किए, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज फर्स्ट। बट नॉलेज आने के बाद भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं था, अंधाधुंध ट्रेडिंग करता था। ये मेरे मेरे स्टूडेंट्स को पता है, 100 लॉट करता था मैं बैंक निफ्टी के, शॉर्टिंग में, वो भी क्योंकि 2-3 हजार में लॉट आता था ना शॉर्टिंग का। सो दैट्स नॉट द की। फिर स्टॉप लॉस नहीं होता था, या किसी ने बताया सर 8 रुपीज का है बाय करो क्या, अरे 8 रुपीज के नहीं, मैं 2 रुपीज के भी 100 लॉट बाय करता था, अरे अभी 200 होगा 500 होगा, और एवरी टाइम वो जीरो हो जाता था, और जब भी बढ़ता था तभी तो निकल जाता था, 2 का 10 हो गया तो अरे अरे ये तो 10, 2 का 10 हो गया।
फिर वो नहीं देखता था कि मैंने कितनी बार लॉसेस किए। तो आपका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या, पहले से आपको पता होना चाहिए कि मेरी रिस्क कितनी है, इतना बड़ा मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा इतना मार्जिन है, और पर ट्रेड में 2% to 5% से ज्यादा मैं लॉस नहीं ले सकता। मैक्स इज अ 5% आजकल के वोलाटिल के हिसाब से, बट 2% पर ट्रेड पर ऑर्डर आपका लॉस हो रहा है तो आपको ट्रेडिंग स्टॉप करना है। बहुत जन लॉसेस लेते हैं 10%, 20%, 30%, और प्रॉफिट में रुकते हैं ओनली 1% to 3%। दैट इज नॉट द प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड ना। आपका मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ सच वोलेटाइल मार्केट में, मिनिमम आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 तो होना चाहिए ना, मिनिमम। और आप जैसे जैसे प्रो ट्रेडर बनते जाओगे तभी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 होना चाहिए। फिर व्हाट इज 1:1, मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स का है तो आपका टारगेट भी 20 पॉइंट्स का होना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स का है तो आपका टारगेट 40 पॉइंट्स होगा। अगर आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स हो तो आपका टारगेट 60 पॉइंट्स होगा। तो आप 1:3 में क्या करते हो, 1:3 में आप डायरेक्टली 5 लॉट अगर लेते हो तो पांचों के 5 लॉट यहाँ पे नहीं बुक कर दे, आप आधे लॉट यहाँ पे निकल जाते हो 20 पॉइंट्स में, फिर थोड़े लॉट 2-3 लॉट यहाँ पे निकलते, फिर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आते हैं। तो वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नाम का भी कंसेप्ट है, तो वो हम लोग ट्रेनिंग में देखते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है, जो मैं बोलूंगा, वो मतलब माइंड मैनेजमेंट। पूरे सेटअप में इफ आई एम गिविंग द वेटेज, देन मैं बोलूंगा कि 50% इज वेटेज फॉर द माइंड मैनेजमेंट एंड रेस्ट ऑफ ऑल 50%, दैट इज आपका रिस्क मैनेजमेंट आया, प्राइस एक्शन आया, ओआई डेटा आया, सॉफ्टवेयर आया, एनालिसिस आया, जो भी कुछ है, टूल्स आए, वो भी वो तो 50% लोग भूल जाते हैं। बिकॉज बहुत जन को मैंने देखा कि डर लगता है एंट्री लेने के टाइम, इवन नॉलेज होने के बाद भी, बिकॉज दे कांट कंट्रोल देयर माइंड। माइंड को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबकी बात की बात नहीं होती कि माइंड को कंट्रोल रख के सबको, मतलब लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करना, इट्स अ डिफरेंट आर्ट। ये आर्ट आपको डेवलप करना पड़ता है। सो हाउ टू इन्वेस्ट ऑन दैट माइंड मैनेजमेंट, जब तक आपका प्रॉपर माइंड कंट्रोल में, बहुत बार आपने देखा रहेगा, अरे आपका माइंड जिस दिन खराब होता है, मूड खराब होता है, आप लॉसेस ही करते हो, इवन तो आपका ट्रेड अच्छा रहेगा तो भी। फिर आप नसीब को कोसते हो, अरे यार मेरा नसीब ही गांडू है, मुझे कुछ होने वाला नहीं है, ये ब्ला ब्ला ब्ला, मैंने लॉसेस ही किया और मैं लॉसेस ही करते रहूंगा। लाइक दैट वे में एक एटीट्यूड आ जाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड को हम लोग नेगेटिव एटीट्यूड में कर लेते हैं बिकॉज ऑफ दैट माइंड। ये माइंड के ऊपर भी आपको वर्क करना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन द माइंड ना, आप कितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लो, आप कितने भी सेटअप्स कर लो, आप कितने भी सॉफ्टवेयर खरीद लो, आपका कुछ नहीं होने वाला। लिख के ले लो, मैं फिर से बता रहा हूँ। फिर निफ्टी ओवर डेटा एनालिसिस करके क्या करोगे, आपका आपने सब डिसाइड कर लिया, बट माइंड ही आपको डर रहा है, अरे लू की नहीं लू, अरे डर लगता है, प्रॉफिट में भी डर लगता है लोग। इसके लिए तो हम लोगों ने अलगो लिया है ना, कि बड़े रैली जब भी आएगा, जब भी हम लोगों ने 40,000 का रैली लिया, तभी लोग खुश हुए, अरे 40,000 का रैली मैं तो नहीं ले सकता था, ये मेरे सारे 30 स्टूडेंट जो है अल्गो ट्रेडिंग के, वो नहीं ले सकते थे। वो क्यों आया, बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर ना, वहां पे इमोशनल लेस है, तो इमोशंस आ जाते हैं। वो ग्रीड एंड फियर के जो इमोशंस है उनको कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। वो कंट्रोल सिर्फ मेडिटेशन से होता है, ट्रस्ट मी। आई डू मेडिटेशन एवरी डे मॉर्निंग, 30 मिनट्स का मेरा मेडिटेशन होता है। विदाउट दैट मैं नहीं, ट्रेडिंग के सामने बैठ ही नहीं सकता, लेवल्स वगैरह दे नहीं सकता, क्योंकि दिमाग आउट हो जाएगा। हर एक बेसिक से बेसिक चीज लोग पूछते हैं, फिर ये आउट दिमाग में मैं कैसे ट्रेडिंग करूँ। सो ऑलवेज डू द मेडिटेशन। आप एनी टाइप ऑफ मेडिटेशन कर सकते हो। इफ यू डोंट नो द मेडिटेशन लेवल, देन 15 to 18 एक मेडिटेशन माइंड मैनेजमेंट का एक कोर्स आने वाला है, मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ। मेरे जो मेंटोर है, मेरे भी एक स्पिरिचुअल मेंटोर है अमोल जी, वो ये कोर्स लेने वाले हैं। यू कैन डू द वन टाइम इन्वेस्टमेंट, 2000 होता है उनका वन टाइम डोनेशन, 4 days है, और मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आप अगर कोर्सेस में, सॉफ्टवेयर में, ओआई डेटा शीट एनालिसिस पे खर्चा कर रहे हो, या 10 घंटा बैठने के बाद भी आपको अगर रिजल्ट नहीं आ रहा, डर लग रहा है, ट्रेड लेते टाइम प्रॉफिट दिखने के बाद भी डर लगता है, कई के लोग ऐसे भी स्टूडेंट्स, प्रॉफिट दिख रहा है तो भी डर लगता है, लॉस होता है तो फिर नहीं डरते, प्रॉफिट में डरते। तो ऐसे लोगों का क्या काम कि प्रॉफिट में डर रहे, तो उसके लिए आपका माइंड स्टेबल होना जरूरी। तो माइंड के ऊपर काम करो, वो सबसे ज्यादा आपको बेनिफिशियल रिजल्ट देगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड, देन आई विल शेयर वन ऑफ द लिंक, जो 15 to 18, जो लोग मुझे पे ट्रस्ट करते हैं ना, ब्लाइंडली करो, ट्रस्ट में। और बहुत जन बोलते हैं कि मेडिटेशन एक ऐसा चीज है जो बुढ़ापे में करना होता है। नहीं भाई, माइंड तो हर एक चीज में, ट्रेडिंग में तो माइंड का ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, बुढ़ापे में करना वो बात अलग है, बट माइंड को अगर कंट्रोल नहीं कर पाते तो आप किसी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो उसके भी टेक्निक्स होते हैं, एक प्रैक्टिस होता है। वो कोर्स करने के बाद भी आपको 21 days 40 days
रेगुलरली प्रैक्टिस करना होता है. इफ यू डू दैट रेगुलर प्रैक्टिस, देन एंड देन ओनली आपका सक्सेस होगा. बिकॉज trading is nothing but a consistent business. This is one type of business na. Why I am shifted to algo trading nowadays? After that I will do full time algo trading only. मैं मैनुअल ट्रेडिंग के खिलाफ हूँ क्योंकि वहां पे इमोशनल रेट लेस होता है. और फिर मेरा जो रूल्स रेगुलेशन है वो मैंने सॉफ्टवेयर को बोल दिया अल्गो को, वो ऑटोमेटिकली बाय और सेल कर लेगा जब भी उसका वो ऑर्डर आएगा तभी, क्योंकि वहां पे डर नहीं होता ना. दैट्स वाई. बट हर एक को अगर अल्गो नहीं जम रहा है, देन यू कैन वर्क ऑन योर माइंड मैनेजमेंट. ठीक है. अल्गो में भी ऑलवेज प्रॉफिट होगा ऐसे नहीं है, लॉसेस भी हो सकते हैं. अभी लास्ट मंथ प्रॉफिट हुआ, उसके पहले जब भी हम लोगों ने क्रूड स्टार्ट किया था, क्रूड गिव्स द लॉसेस, बट स्टिल ट्रस्ट वर्दी में लोगों ने ज्वाइन किया और दे आर नाउ इन द प्रॉफिट जोन. ठीक है. तो प्रॉफिट एंड लॉस इज अ गेम, पार्ट ऑफ दिस गेम. ये गेम को सीख लो पहले. ये सीखने के लिए माइंड स्टेबल होना जरूरी है. तो 15 to 18 अप्रैल ये कोर्स हो रहा है. डोंट मिस दैट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी. आई विल शेयर दैट लिंक ऑन माई टेलीग्राम चैनल पर, मैं उसको शेयर कर लूंगा. ठीक है. इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट्स तो आप क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो. अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलो, और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करना मत भूलो. ठीक है. थैंक यू.